بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشریٰ بی بی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے کرونا کی علامات بہت معمولی نوعیت کی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ 24 نیوز بھی وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشریٰ بی بی کو بھی کورونا ہو گیا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے وزیر اعظم عمران خان کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فیصل سلطان نے کہا کہ وزیر اعظم کے کورونا کی علامات بہت معمولی نوعیت کی ہیں۔ ان کی طبیعت بہتر اور وہ حشاش بشاش ہیں۔ خاتون اول کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے ٹویٹ کے ذریعے کی۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول جلد صحت یاب ہوں۔ وزیر اعظم نے 2 روز قبل گزشتہ جمعرات کو انسداد کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی تھی۔ ماہر صحت اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور ڈاکٹر جاوید اکرم نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی کورونا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی میری نالج میں آیا کہ ان کو 2 دن پہلے سائنو فارم کی ویکسین انجیکٹ کی گئی۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ اب عام جو لوگوں کا پیدا ہوا ہے کہ جی شاید ویکسین کی وجہ سے کرونا ہو گیا ہے یا ہم پازیٹیو ہو گئے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہاں تو کوئی علامات ہوں گی بہت معمولی، یا بالکل ہی علامات نہیں ہوں گی، جس کا مطلب ہے کہ انکیوبیشن پیریڈ میں ہوں گے۔ انکیوبیشن پیریڈ اس وائرس کا کوئی 1 ہفتے سے 10 دن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آج کسی کو وائرس لگتی ہے تو اس کو 1 ہفتے بعد علامات شروع ہوں گی۔ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے وزیر اعظم عمران خان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ 24 نیوز بھی وزیر اعظم کی جلد از جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے عمران خان جلد صحت یاب ہوں گے۔ پاکستان میں غیر ملکی سفیروں اور سفارت خانوں نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر، ترک سفیر مصطفیٰ یاکل اور چینی سفیر نونگ رونگ کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر اور آسٹریلوی ہائی کمشنر نے وزیر اعظم عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے پیغامات دیے۔ فرانسیسی سفارت خانے اور بیلجیم کے سفارت خانوں نے بھی وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سفیروں اور سفارت خانوں نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد کرکٹرز اور شوبز ستاروں کی جانب سے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ کپتان بابر اعظم نے عمران خان کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور عوام سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ محمد حفیظ، نسیم شاہ، رمیز راجہ، شعیب اختر، وقار یونس، وسیم اکرم، جویریہ خان، ڈیرن سیمی نے وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ اداکارہ مہوش حیات نے بھی عمران خان کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ کرونا کے بڑھتے حملوں پر سول ایویشن اتھارٹی نے پابندیاں سخت کر دیں۔ کیٹیگری سی میں شامل 12 ممالک کے مسافروں کی پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ برطانیہ کو کیٹیگری سی سے نکال کر کیٹیگری بی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کرونا کے بڑھتے حملوں پر سول ایویشن اتھارٹی نے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ کیٹیگری سی میں شامل 12 ممالک کے مسافروں کی پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ برطانیہ کو کیٹیگری سی سے نکال کر کیٹیگری بی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سول ایویشن نے کرونا SOPs کے تحت ممالک کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ کیٹیگری اے میں شامل 21 ممالک کی تعداد کم کر کے 20 کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا، چین، جاپان، نیپال، سری لنکا اور سعودی عرب شامل ہیں۔ کیٹیگری اے کے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی نہیں ہے، جبکہ کیٹیگری بی کے مسافروں کو سفر سے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NCOC کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے یہ اقدام اٹھایا ہے اور پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس کے لیے منتظمین نے بڑا فیصلہ کر دیا۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی نے ایونٹ میں غیر ملکی شائقین کا داخلہ بند کر دیا۔ کمیٹی منتظمین کے مطابق کورونا وائرس کے باعث غیر ملکیوں کو جاپان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹوکیو اولمپکس 2020 میں ہونا تھے، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے انہیں ملتوی کر دیا گیا تھا، اور اب اس حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی نے ایونٹ میں غیر ملکی شائقین
मुंतज़मीन का दाखिला बंद कर दिया है। कमेटी मुंतज़मीन के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस गैर मुल्कियों को जापान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होना थे, ताहम कोरोना वायरस की वजह से उन्हें मुलतवी कर दिया गया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया कि अपना घर ठीक करना चाहिए। ऐसा तब होगा जब मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सख्त फैसले करते हुए किसी एक पार्टी को कुर्बान नहीं कर सकते। किसी हुकूमती नुमाइंदे को हमारी पार्टी का नुमाइंदा बनने की ज़रूरत नहीं। चीज़ें जो इस वक्त मुल्क में हो रही हैं, मैं समझता हूँ हमें उस हवाले से तमाम पहलुओं को देखना चाहिए। हमें अपना घर ठीक करना है तो फिर इन तमाम पहलुओं को देखकर हमें इक़दाम करने होंगे। मुल्क की सियासत को ठीक करना होगा, जमहूरियत को ठीक करना होगा, आइन की हाकिमियत लानी होगी और अवाम की एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत इस मुल्क में लानी होगी। सिर्फ बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए लोगों को कौम पर मुसल्लत करना, इससे कभी भी हम अपने घर को ठीक नहीं कर सकेंगे। जब हम एक दूसरे को रिलीफ देंगे, हम मोहलत देंगे और इसी तरीके से इत्तेहाद चलते हैं, हम फिर भी सख्त फैसला नहीं कर रहे। कोई उजरत हमें फिर नहीं है कि हम एक पार्टी को क्यों कुर्बान करें, और एक बड़ी पार्टी है, लिहाजा हम एक पार्टी को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हैं। लॉन्ग मार्च थोड़ा मुअख्खर हो सकता है, शायद इस तो हम बर्दाश्त कर सकें, लेकिन एक पार्टी को हम कभी भी नहीं चाहते कि वो इत्तेहाद से बाहर हो। हम यकजहती चाहते हैं, मिलकर इस रजीम के साथ हम लड़ना चाहते हैं। कौम को मायूस नहीं होना चाहिए। तहरीकें चलेंगी और तहरीकें आगे बढ़ेंगी। इंशाअल्लाह हम आवाम को तन्हा होने का एहसास नहीं देंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि लॉन्ग मार्च मुअख्खर होने पर हुकूमती वज़रा कलाबाजियाँ लगा रहे हैं। ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। बड़ी ईद पर हुकूमत की कुर्बानी करेंगे। इस्तीफ़ों का मामला बैठ कर हल होना चाहिए था। इस गैर जमहूरी गैर आइनी जो टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसके ख़िलाफ़ जो है भरपूर अवामी जदोजहद की जाए। हमें तो बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि भाई ये इतना अंडर प्रेशर थे, इनकी इस तरह से नींदें हराम हुई थी और इन्हें हर चीज़ जो है वो भूली हुई थी। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इनका सही इलाज हो रहा था और लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है वो गलत तौर पे हुआ है। ईद के बाद कुर्बानी वाली ईद आने वाली, इंशाल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाल्लाह ताला पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी। कराची के हल्का एन 249 में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से अपने उम्मीदवार की हिमायत मांग ली। तहरीक इंसाफ का वक्त हिमायत की दरख्वास्त करने MQM के पास पहुंच गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची में एन 249 के जिम्मे इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। नून लीग अपने उम्मीदवार की हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी के पास पहुंच गई। शाहिद खकान अब्बासी की क़यादत में लीगी वफ़द ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। शाहिद खकान अब्बासी ने नून लीग के उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि पार्टी से मशावरत के बाद आगाह करेंगे। जिम्मी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अब्दुल कादिर मंदूखेल जबकि नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को टिकट जारी कर रखा है। उधर तहरीक इंसाफ का वफ्द खुर्रम शेरजमान की क़यादत में MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पहुंच गया। PTI ने मुत्तहिदा से अपने उम्मीदवार अमजद अफरीदी की हिमायत के लिए दरख्वास्त कर दी। खुर्रम शेरजमान का कहना था कि हम इत्तेहादी हैं, चाहते हैं मिलकर इलेक्शन लड़ें। इत्तेहाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो मुखालफिन को शिकस्त दे सकते हैं। इस मौके पर MQM रहनुमा कवर नवीद जमील का कहना था कि तहरीक इंसाफ की तजवीज़ राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। PTI वाले हमारे इत्तेहादी और बड़े भाई हैं। NA 249 की नशिस्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा के इस्तीफे से खाली हुई थी। फैसल वाडा ने 2018 के इंतखाबात में इस हल्के में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी। आमद रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान दरवाजों पर दस्तक देने लगा। मुर्गी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। रमजान की आमद से कबल ही ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 3 रुपए इजाफे के बाद 302 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी का थोक रेट 200 रुपए जबकि परचून रेट 208 रुपए फी किलो कर दिया गया। अंडों की पेटी 4860 रुपए की हो गई। पॉलिश भी अब सस्ती नहीं रही। पॉलिश की कीमतों में 15 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। शू पॉलिश के साथ साथ शाइनर लिक्विड 15 से 20 रुपए तक महंगे। शूज क्रीम ट्यूब भी 30 रुपए तक महंगी हो गई।
महंगाई में पाकिस्तान ने दुनिया के 161 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। फरवरी में पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 8.7% रही। अगर दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो गिनती के चंद ममालिक में ही महंगाई की शरह 8% से ज़्यादा है। आदादोशुमार के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 4.1%, श्रीलंका में 3.3%, इंडोनेशिया में 1.4% और जनूबी कोरिया में 1.1% थी। अमरीका में महंगाई की औसत शरह 1.4%, बरतानिया में 0.4%, ऑस्ट्रेलिया में 0.9% रही। लेकिन थाईलैंड, चीन, मलेशिया में तो मामला ही उलट हो गया, जहां अशिया की कीमतों में इजाफे की बजाय कमी देखी गई। थाईलैंड में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.2% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि चीन और मलेशिया में ये शरह 0.2%। टी एसोसिएशन ने नए माली साल के बजट में चाय की दरामद पर भारी टैक्स कम करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन टी एसोसिएशन मोहम्मद अमान पराचा ने चाय को लग्जरी आइटम से निकालने और चाय की दरामद कीमत में तमाम छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। टी एसोसिएशन ने नए माली साल के लिए बजट तजावीज पेश कर दी। टी एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद अमान पराचा ने कहा कि चाय मजदूर समेत हर कोई पीता है, इसे लग्जरी आइटम से निकाला जाए। दरामद पर 17% सेल टैक्स, 12% कस्टम ड्यूटी, 5.5% इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं। नए माली साल के बजट में चाय पर भारी टैक्सों का बोझ कम किया जाए। मजदूर है, ड्राइवर है, कोई भी है, उसकी नेसेसरी जरूरत है और उसको सस्ती मिलनी चाहिए। अगर आप फूड आइटम में लेके आएंगे तो ड्यूटी और टैक्सेस इसके कम हो जाएंगे और ये चाय हर आदमी को सस्ती मिलेगी और काफी रेट में फर्क पड़ेगा। टी एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन मोहम्मद जिशान ने बताया कि पाकिस्तान में सालाना 25 करोड़ किलोग्राम चाय की तलब है। 12 करोड़ किलोग्राम फाटा और आजाद कश्मीर को मिलने वाली टैक्स छूट के नाम पर लाई जाती है, जिससे कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है। ये तो स्मगलिंग से भी अच्छा काम हो गया। स्मगलिंग करते थे तो कराची से माल निकलता था, ट्रक पे जाता था, उसका किराया देते थे, वहाँ कुछ महसूल भरते थे, 4-5 लाख रुपए खर्चा होता था। हम मिसाले 35 लाख रुपए ड्यूटी भरते थे तो वो 5 लाख तो खर्च करते थे। अब मसला ये हो गया है कि यहाँ तो गवर्नमेंट जीरो के ऊपर माल निकल रहा है और हमारी री एक्सपोर्ट के नाम पे, बाउंडेड वेयर हाउसेज के नाम पे माल निकलता है और मार्केट्स में आ जाता है। टी एसोसिएशन ने कहा है कि टैक्स रेट कम होने से हुकूमत के टैक्स आमदनी बढ़ने समेत आवाम को सस्ती चाय मिल सकेगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सदर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वज़ीर आज़म के कहने पर धड़ाधड़ चल रही है। हुकूमत ने कवानीन बनाने हैं तो बार बार सदर के पास क्यों जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वैक्सीन नहीं, महंगाई का टीका लगा रही है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो हजम बनता है इन 3 अस्पतालों का वो 12 अरब रुपए है, जो सिंध गवर्नमेंट ने मौजूदा माली साल में इन 3 अस्पतालों को दिया है। ये कहते हैं कि जी हमने इस गवर्निंग बॉडी के जरिए इन अस्पतालों को टेक ओवर कर लिया। अगर टेक ओवर किया होता तो कुछ पैसे, अखराजात कुछ सैंक्शन किए होते, कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया होता। और खदशा इस बात का है कि वफाकी हुकूमत अपनी जो सियासी इंटरेस्ट है उसको बालाए ताक नहीं रखेगी और सेहत को कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत के पास वो वसाइल नहीं है कि कराची के 3 अस्पताल चला सकें। खुशियों के आलमी दिन पर खुश रहना सीखें। ज़िंदगी में खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरें। जैसे फैसलाबादियों के लिए हर लम्हा खुशी का होता है, परेशानी का सवाल भी करें तो खुश रहने की बात करते हैं। अली रज़ा की रिपोर्ट देखिए। हम उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो दुखी तो हैं, लेकिन जब उनसे बात करेंगे तो वो खुशियाँ ही बांटेंगे। आइए आपसे मिलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुख होवे सुख होवे, फैसलाबादी हमेशा खुशहाल ही रहंदे। अल्लाह दी रहमत। सोन नहीं मारना मेरे, उंज गल करनी। अल्लाह दी रहमत, जिथे भी साडा को सुन वज गया तुहाडे एक पासे छेव नहीं आने। की वजह मैं फैसलाबाद दे लोग अब मतलब मैं देखिया कि हालात खराब आ, तुसीं फिर भी कहने मैं खुश हां। मैं खुश हां। ओदी की वजह जी? हालात खराब है, खुश हां। मतलब हालात खराब है फिर क्यों खुश हां? मैं खुश हां, हालात क्यों खराब है? हां जी, की गल है, परेशान क्यों हो तुसीं? सानू परेशान करते और परेशान होण साडे दुश्मन ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ लॉकडाउन ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਰ ਜ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰੌਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੈਰਤ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋ, ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਟੁਕ ਟੁਕ ਡਾਉਣ ਸੁੱਟਣ ਦੇ, ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਸੰਡੇ हाले परेशान
जिंदा दिलाना फैसलाबाद हमेशा खुश रहते हैं। इनका कहना है कि इनका हर रोज खुशी का दिन होता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। आज दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अदाकार नबील कहते हैं कि असल खुशी दूसरों के काम आने में है। कई बरसों से आवाम को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे राहील बेग से। जी राहील। आज दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार नबील, जो काफ़ी हंसाते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशियां भी बिखेरते हैं। तो नबील साहब क्या कहेंगे? जी, हम तो पिछले 11 साल से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को खुश करें, और असल खुशी जो होती है वो भाई किसी के काम आने में होती है। और मुझे लगता है वैसे तो खुशियों का एक दिन नहीं होना चाहिए, सारे दिन ही खुशियों के होने चाहिए। अल्लाह सबके लिए सारे दिन ही खुशियों के कर दे। दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह का निज़ाम ये है कि वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा। बिल्कुल जी, नबील हमारे साथ से, इनका यही कहना है कि असल खुशी वही है कि आप किसी के काम आए, और जब आप किसी के काम आते हैं जो खुशी आपको मिलती है वो काबिल दीद होती है। बहुत शुक्रिया आपका। जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में यौम पाकिस्तान के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर सिंध ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में यूनिवर्सिटी की तालिबात ने हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग देने के लिए टैबलोस पेश किए। इस मौके पर डीजी रेंजर सिंध का कहना था कि तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल ख़वातीन मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। नई नस्ल को तारीख़ और नज़रिया पाकिस्तान से रूशराज कराना कौमी जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। अली आमिर मलिक को एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया। शाहिद हनीफ एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक, अकरम नईम बरोका को एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस लगा दिया गया है। जबकि मोहम्मद फारूक मजहर एडिशनल आईजी वेलफेयर और मोहम्मद रियाज नज़ीर गाढ़ा को डीआईजी एलीट फोर्स लगा दिया गया। राव अब्दुल करीम को आरपीओ गुजरांवाला, मुनीर मसूद मारत को सीपीओ मुल्तान, महबूब रशीद मियाँ को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब, जबकि जहांजेब नज़ीर खान को डीआईजी स्पेशल ब्रांच और सैयद मोहम्मद अमीन को डीआईजी टेली कम्युनिकेशन लगा दिया गया है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। अली आमिर मलिक को एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया, जबकि शाहिद हनीफ एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक और अकरम नईम बरोका को एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस लगा दिया गया है। चीन के शहर हर्बन में दुनिया का पहला बर्फानी रीछों वाला पोलर बियर होटल खोल दिया गया। अब खाना खाएं और रीछों के निराले अंदाज भी इंजॉय करें। इफ्तिताह के साथ ही होटल की बुकिंग फुल हो गई।